Hello everyone. Welcome to New Era Pathshala Education. Myself Nishtha and I'll be teaching chemistry on this platform. Please do subscribe this channel for more educational videos. You can also send me any query related to the topic in the comment box. Please do like and share with your friends. So in the last lecture we have discussed about the back exercise question number 1 to 7 of your NCERT books. Now we will start with the question number 8 today. So what is the question? We will see. Write the balanced chemical equation for the following. First of all, we have to write the balanced equation, then identify the type of reaction. So we have to tell what type of reaction is this. For example, first is potassium bromide plus barium iodide forms potassium iodide plus barium bromide. So potassium bromide, you have to write the formula first. KBr plus BaI2 forms KIN BaBr2. आफ्टर बैलेंसिंग क्यों करनी पड़ी? क्योंकि आयोडीन यहाँ पे 1 था, यहाँ पे कितने थे? 2. तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया. जब ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो पोटाशियम कितने हो गए? 2. सो हियर ऑल्सो वी हैव टू पुट 2. नाउ सी, दिस रिएक्शन इज अ type of double displacement because potassium and barium are exchanging their positions. Potassium goes with iodine and barium goes with bromine. So this type of reaction is double displacement reaction. Now next, zinc carbonate forms zinc oxide plus carbon dioxide. Zinc carbonate is a single reactant, forms 2. It means breakage, decomposition. So this is a type of decomposition reaction and this equation is already balanced. So we don't need to balance this reaction. Third is hydrogen gas plus chlorine gas from hydrogen chloride, H2 plus Cl2. These two are combining together to form a single product. So this was combination reaction. 2 hydrogen, 2 chlorine, so we have to put 2 here to balance the reaction. So that is why this is a balanced chemical equation and it is a type of combination reaction. Next is magnesium plus hydrochloric acid forms magnesium chloride and hydrogen. Mg plus HCl forms MgCl2 plus H2. Only 2 हाइड्रोजन्स के कारण हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ा? 2. और 2 क्लोरीन भी थे, तो इस एक 2 लगाने से हमारी दोनों चीज़ें बैलेंस हो गई. एंड दिस इक्वेशन is a type of displacement. Why? Magnesium and hydrogens are displacing their position. Magnesium goes with chlorine and hydrogen goes along like magnesium. So this is a type of displacement because magnesium is more reactive than hydrogen. So that is why it has displaced hydrogen from its chloride. Now, next question is, what does one mean by exothermic and endothermic reactions? Give example. We have already discussed exothermic reactions that release energy in the form of, अब एनर्जी निकलनी है in the form of heat, light और sound भी हो सकती है, electricity भी हो सकती है. एनर्जी की बड़ी सारी फॉर्म्स हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने की थी, जब कार्बन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और हीट रिलीज़ होगी, और जब भी हीट रिलीज़ होगी एग्जिट होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी.
Similarly, endothermic, that absorb energy or require energy in order to proceed. जब भी कोई रिएक्शन एनर्जी की प्रेजेंस में होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होके होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। जैसे मैंने आपको फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल दी थी जिसमें सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही थी। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight forms glucose plus oxygen. This is the example of photosynthesis that are occurring in the plants, and they give us oxygen and takes carbon dioxide, and glucose is the food for them, so they prepare their own food with the help of photosynthesis. So these were the two examples of exothermic and endothermic reactions. Now, next question is, why respiration considered an exothermic reaction? Explain. रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? मैंने आपको नोट्स में भी बताया था जब चैप्टर रीड कर रहे थे कि रेस्पिरेशन में क्या होता है। जब डाइजेशन करते हैं हम, ड्यूरिंग डाइजेशन we eat food and that food is broken down into simpler substances. फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और जिसमें ब्रेक होते हैं दैट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट, दैट इज़ ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज जब कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, जब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं वो ग्लूकोज के साथ कंबाइन होती है एंड इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब वो एनर्जी हमारी बॉडी जो है डिफरेंट फंक्शंस करने में यूज़ कर। सो दिस प्रोसेस इज रेस्पिरेशन एंड heat is released in the form of energy, so that is why it is called exothermic reaction. Next question is, why are decomposition reactions called the opposite of combination reactions? Decomposition मैंने आपको पहले ही बताया था, उसमें क्या होता है, एक चीज़ ब्रेक होती है दो में with the help of energy, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं और एनर्जी रिलीज़ करती हैं। सो यू कैन सी दीज टू आर द ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर। जैसे वाटर को ब्रेक करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो वाटर बनेगा। दीज टू आर ऑपोजिट्स। सो हाउ कैन यू राइट इट? Decomposition reactions are those in which a compound breaks to form two or more substances. These reactions require a source of energy. इनको एनर्जी चाहिए होती है और उसमें एनर्जी रिलीज होती है। Thus, they are exact opposite of combination reactions in which two or more substances combine to give a new substance with release of energy. So these two are opposites of each other. Next question is, write one equation each for decomposition reactions where energy supplied in the form of heat, light और electricity. तो तीन तरह की decomposition की थी, thermal, photochemical and electrolysis. Thermal means heat की presence में, फोटोकेमिकल लाइट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोलिसिस थी दैट इज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो दीज थ्री एग्जांपल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर नोट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट? राइट द इक्वेशन फॉर दीज ऑल्सो. अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस ए reacts with Bx, A will replace B from its position, forms Ax and B. ये कब होगा? जब A जो है B से ज़्यादा reactive होगा. This is the displacement in which a more reactive element displaces the less reactive element from its compound. In double displacement reaction, two atoms or groups they exchange their positions. जैसे इस इक्वेशन में ए बी और सी डी थे, ए सी की जगह पे चला गया तो क्या बन गया ए डी, और सी ए की जगह पे आ गया तो क्या बन गया सी बी.
सो दिस इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें दो डिस्प्लेस कर रहे हैं एक दूसरे को. So these examples we have already discussed these activities in the notes. You can give them. Question number 14 is, in the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal. So means जब हम सिल्वर की रिफाइनिंग उसको प्योर करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में कॉपर डालते हैं. अब सिल्वर नाइट्रेट में जब कॉपर डालेंगे तो कॉपर नाइट्रेट जो होगा वो अलग हो जाएगा, बिकॉज कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर. सिल्वर गोल्ड जो थे वो लास्ट में थे रिएक्टिविटी सीरीज़ में, एंड द कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर, so that is why it displaces silver from its position to form copper nitrate, and silver is released, and this silver is pure silver. So that is why this process is called refining of silver. Refining means purifying the silver. जितने भी impurities होंगी वो सारी जो होंगी उससे बाहर निकल जाएंगी कॉपर नाइट्रेट से साथ. Next, what do you mean by precipitation reaction? Explain by giving examples. Precipitation मैंने आपको पहले ही बताया था, जब कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हों उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ये किस में हो रहे थे, डबल डिस्प्लेसमेंट में, जो हमने एक्टिविटी की थी जिसमें हमने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को कंबाइन कराया था. क्या बना था, बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स और NaCl एक्वस फॉर्म में बन गया था. सो डेफिनेशन क्या होगी, रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. एक तो एग्जांपल ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दूसरी आप इसकी भी कर सकते हो. Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट combines with calcium chloride to form calcium carbonate and sodium. Calcium carbonate is limestone जिसके वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स डिपॉजिट हो जाएंगे. Now, question number 16 is, explain the following terms in of gain or loss of oxygen. In terms of gain or loss, जब gain of oxygen होता है तो मैंने आपको बताया था oxidation, loss of oxygen होता है तो reduction. Now, first of all we have to explain. So oxidation is the gain of oxygen atom, and reduction is the loss of oxygen atom. We have to give two examples for each. Here you can see in this example carbon dioxide combined with water forms carbon monoxide and water. This अब हाइड्रोजन यहाँ पे क्या था, सिंगल, उसके बाद उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई तो हाइड्रोजन की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन. सिमिलरली कॉपर जब ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, तो कॉपर की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन. सो दीज वर द एग्जांपल्स फॉर ऑक्सीडेशन. नाउ रिडक्शन, यही वाली एग्जांपल को हम रिडक्शन में ले सकते हैं. अगर हाइड्रोजन की हो रही थी ऑक्सीडेशन तो कार्बन डाइऑक्साइड 2 ऑक्सीजन से यहाँ पे एक रह गया तो एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो उसकी क्या हो गई, रिडक्शन. सिमिलरली अगर कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की बात करें, कॉपर ऑक्साइड था फिर क्या रह गया, कॉपर, तो कॉपर की क्या हो गई, रिडक्शन. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिडक्शन रिएक्शंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 17, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X, एक एलिमेंट है जिसका शाइनी ब्राउन कलर है, उसको X मान लिया हमने. ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, जब हम उसको एयर में हीट कर रहे हैं तो वो ब्लैक हो रहा है. नेम द एलिमेंट X. अब शाइनी ब्राउन कौन सा एलिमेंट होता है, कॉपर. कॉपर को जब ऑक्सीजन में बर्न करोगे, हीट करोगे
then it will form copper oxide, and this copper oxide is black in color. So हमें पूछा क्या था, नेम द एलिमेंट एक्स. एक्स क्या था, कॉपर, एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड, और ब्लैक कलर्ड कंपाउंड क्या था, कॉपर ऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स. जितने भी आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, हम उनके ऊपर पेंटिंग क्यों करवाते हैं. ताकि मैंने आपको बताया था, आयरन के ऊपर रस्ट लग जाती है जब वो एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है. अगर हम उसके ऊपर पेंट की लेयर लगा देंगे, द कांटेक्ट ऑफ आयरन विद द एयर और मॉइस्चर ब्रेक्स, और वो रस्ट नहीं होगी, उसकी कोरोजन नहीं होगी. सो व्हाट इज़ द आंसर. Iron articles are painted because it prevents them from rusting. When painted, the contact of iron from moisture and air is cut off. Contact खत्म तो rusting भी prevent हो जाए. Now, question number 19 is, oils and fats containing food items are flushed with nitrogen. Why? मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दी थी. अगर आपको रेंसिडिटी को प्रिवेंट करना है तो हमें क्या करना है, ऑक्सीजन रिमूव करके उसकी जगह नाइट्रोजन फ्लश इन करनी है. दिस इज़ द एग्जांपल दैट इज़ डन इन द चिप्स पैकेट्स. सो व्हाट इज़ द आंसर. नाइट्रोजन इज़ एन इनर्ट गैस. इनर्ट मीन्स जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती. इट इज़ नॉन रिएक्टिव गैस. नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में भी 78% प्रेजेंट है, बट ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती जब तक इसको एनर्जी ना दी जाए. सो मीन्स नाइट्रोजन एज इट इज़ इट्स इनर्ट नॉन रिएक्टिव गैस. ये हमारे फूड के ऑयल्स और फैट्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, बट जबकि ऑक्सीजन जो है दैट रिएक्ट्स विद आवर फूड. So, what is the answer? Nitrogen is an inert gas and does not easily react with these substances. अब these substances means oils and fats present in our food. On the other hand, oxygen react with food substances and make them rancid. So means रेंसिडिटी का कारण क्या है, जब हमारे फूड के ऑयल्स और फैट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं. सो दे बिकम रेंसिड विच रिजल्ट्स इन द बैड स्मेल एंड टेस्ट. सो बैग्स आर पैक्ड when with nitrogen gas to remove oxygen inside the packet. सो ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए उसके जगह हम क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस को फ्लश इन कर देते हैं ताकि हमारा जो फूड है वो रेंसिड ना हो, इसका टेस्ट एंड स्मेल जो है वो ठीक हो. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद द वन एग्जाम्पल ईच. फर्स्ट टर्म इज corrosion and second term is rancidity. So corrosion में आपने मेटल की बात करनी है, रस्टिंग आए तो आयरन की बात करनी है. corrosion, it is the defined as the process where metal deteriorate means धीरे धीरे फिनिश होता जाता है, ख़त्म होता जाता है, रिएक्ट करता जाता है एज अ रिज़ल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. अब केमिकल रिएक्शन होती किसके साथ है, एयर और मॉइस्चर के साथ या केमिकल्स के साथ. एग्ज़ाम्पल इसकी आयरन, जब इनकी प्रेजेंस में, एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में, वो क्या बनाती है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसको हम रस्ट बोलते हैं. रेंसिडिटी क्या है, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स दैट रिजल्ट्स इन बैड स्मेल एंड टेस्ट, दैट इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी. जैसे हमारे घर में बटर है तो वो थोड़े दिन के बाद जो है उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, उसकी स्मेल जो है वो ख़राब हो जाती है. सो दिस इज़ अ एग्ज़ाम्पल.
Now all the back exercise questions of this chapter are covered. Chapter is almost completed. Any query related to the chapter you can send me in the comment box, and next we will continue with the next chapter. Up to then, thank you so much. Keep liking and sharing my videos. Bye bye.